1999 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सेशन है, साथ साथ ट्रूथ ओनली ट्रम्प 799 का भी सेशन है। इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक नागरिक के जीवन में आती है और 4 बार पेंशन प्रत्येक नागरिक के जीवन में आती है। इसके तहत राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच, constitutional validity per day fiscal credit based fundamental right, direct link to ministerial budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget should be there. There should be 6 Rashtrapati Bhavan based on Mandir document, because here we are giving self-employment to each and every person. So we have to call 1 Rashtrapati Bhavan as 6 Rashtrapati Bhavan, and in that first Rashtrapati Bhavan is of Shiv Parvati Mandir, all Mandir documents. Second, Vishnu Lakshmi Mandir, all document. Third, Brahma Saraswati ISBN certificate, whatever book we have written, and educational certificate what we have achieved. Brahma Saraswati Rashtrapati Bhavan. Then fourth, Adi Shakti Jagadamba Rashtrapati Bhavan. Fifth, each United Varshkrit Rashtrapati Bhavan, all the new goddess Varshkrit whatever we have made that. And Rashtrapati Bhavan number 6, Hindu government decision, whatever law we have made from 15th August 1947 and 31st August 2001, all these are coming under this. So 6 Rashtrapati Bhavan. On the basis of that, right of pension should be fundamental, right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry budget. Particularly we are making organized self-employed ministry budget because it provides in own work self-employment government job. There should be employment equilibrium point, 40,000 above earner and 40,000 below earner. Presently 30% of the total population is 40,000 per month above earner and 70% of the population is 40,000 per month below earner. But problem lies below 70,000 because irregular income, unemployment, poverty and all financial problems come in this arena of below 40,000 per month earner. Right of pension should be fundamental right for after 14 year for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month so on. इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण OSMB एक्ट 2001 शाहजहांपुर के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है। इसके तहत इन सब कानूनों को समर्थन करके आगे बढ़ा रही है। जहाँ तक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के ज़रिए फाइनेंशियली हम लोग मजबूत होते हैं और हम लोगों के जीवन में फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रति माह आता है और साथ साथ 4 बार पेंशन 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है जुड़ता जाता है। 18 का पेंशन 32 में जुड़ जाता है, 32 का 46 में और 46 का 58 में, तो अच्छी खासी रकम बन जाती है। मतलब बहुत कम पैसा में हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनवाया है और इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं क्योंकि 140 करोड़ आबादी और रोजगार की समस्या जटिल, रोजगार उपलब्ध नहीं भारतवर्ष में। जिनको मिल जाता है वह 30% से ऊपर वर्ग में आ जाते हैं, बाकी 70% लोग इधर उधर के जीवन में हमेशा रोजगार से पीड़ित होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। पैसे का प्रबंध इसमें वैसे ही किया जाता है जैसे हम लोग 1860 से एनुअल बजट और रेलवे बजट का हर एक साल पैसे का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों में
अधिकार में सतर्कता अमितेश्वर वाद डेवलप करता है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डेवलप करता है कि हम कैसे अपने अधिकार को पहचानें और कैसे उस पर अमल करें, ताकि कैसे रोजगार अपने कामों में लाएं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनाया। ये फिजिकल क्रेडिट वेज जो है सो एक रकम है जो कि हम कमाते हैं, यह संवैधानिक तौर पर मान लिया जाता है। और जैसे ही हम इसको सरकार मानती है उसी समय में हमारा पेंशन चालू हो जाता है, और साथ साथ हम एलिजिबल हो जाते हैं कि अगले 14 वर्ष तक 100 आए 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखाते रहेंगे। और फिर 14 वर्ष के बाद फिर पेंशन जो काम हमने किया उस पर आता है। यह जो पहले वाला पेंशन है और ये पेंशन जुड़ जाते हैं। इस तरह से पिछले वाले में अगर 1000 शुरू हुआ तो दूसरे वाले में 2000 शुरू। इस बीच में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनवाया है, जो कि इसी मिनिस्ट्री OSMBI मिनिस्ट्री से लिंक है। इसके तहत आप 40,000 मतलब 140 करोड़ नागरिक है तो 40,000 से ऊपर जाने के लिए ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, DLED, उसके वैल्यू आप प्राप्त करते रहेंगे। 2-2 साल लगते हैं, सेशन एकदम टाइमली है, 2-2 साल लगते हैं और उसको प्राप्त करते गए और 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके 40,000 से ऊपर चले गए। अभी तक ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि एक नागरिक जो है पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद अभी तक जो हमारी जो 15 अगस्त 1947 से अभी तक का जो प्रशासनिक सेवा रहा है कि नॉलेज की पहचान या तो आपको कंपटीशन से या फिर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही होगा। बट लेकिन इस व्यवस्थित बेरोजगारी मंत्रालय बजट से एकदम एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त होता गया और जो काम कर रहे हैं उसी में यह व्यवस्था लागू होता चला गया। तो ये एकदम से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सचिवालय यानी कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सचिवालय बनाता है और उसमें प्रत्येक नागरिक को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जोड़ देता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर 31 अगस्त 2001 से कार्यरत है और इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके लिए फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आप लोग इसको वोट दें और जुड़ें लेबर पार्टी ऑफ इंडिया से और इसके विचारधारा को खरीदें। साथ साथ जो है सो ओमनोस जो है पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है ट्रूथ ऑन लिटरम्स, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ही लिखी गई है, उसी का लिटरेचर है, अमितेश्वर झा द्वारा, अमित कुमार झा द्वारा। इसको आप लोग खरीदें, 401 रुपये की किताब है और साथ साथ जो है सो दोस्तों में शेयर भी करें। और इसके 6 खंड हैं, जैसे हमारे यहाँ 6 राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि हम लोग सभी को स्वरोजगार देते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, कोई भी काम को संवैधानिक रूप से हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग कर होता है, सीमेंटिंग होता है, ठीक इसी प्रकार से संवैधानिक रूप से अमितेश्वरवाद जोड़ देता है। तो उसी चीज़ को ट्रूथ ऑन लिटरम्स में लिखा गया है। इसका लिटरेचर है, 6 पार्ट की कीमत है 2401 रुपये। पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। इसके अलावा जो यूट्यूब पर है कि अपना आप चैनल सुन सकते हैं। 900 अपलोडिंग हो चुके हैं सेशन, जिसमें 1 से लेके 100 इंग्लिश में है। OSMBI सेशन 101 से लेके 200 हिंदी में है, 201 से 225 मैथिली में, 226 से 300 इंग्लिश में, 301 से लेके 400 हिंदी में, 401 से 500 इंग्लिश में, 501 से लेके 700, 401 से लेके 500 मैथिली में, 501 से लेके 700 इंग्लिश में, 701 से लेके 900 हिंदी में। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सो और भी प्रबंध करती है एनुअल फंक्शन का, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत अपना एनुअल फंक्शन जो है 5 बार मनाया जाता है, साल में 4 बार मनाया जाता है। 16 से 26 फरवरी,
28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ट्विटर और इसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगार किया जाता है और धूमधाम से पूजा किया जाता है। बहिष्कृत विधि यज्ञ किए जाते हैं और 10वां दिन मूर्तियों का विसर्जन करके नियर बाई रिवर में मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कोई भी परेशानी नहीं आए और तरक्की करता जाए, क्योंकि 140 करोड़ आबादी है और सभी को रोजगार देता है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर ये कानून जनतंत्र के तूफान में खड़ा है और अपनी वजूद को आगे लेके जा रहा है। आप लोग इसका साथ दें, इसको पढ़ें और शारदापुर पहुँचें। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है ट्विटर पर एड्रेस है अमित कुम 68022607 और जो है सो इसके अलावा जो है सो ब्लॉग है जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com, इससे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। डेली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेड ऑफिस में आरती होता है। हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और SMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। पत्र संचार भी कर सकते हैं इस एड्रेस पर। और साथ साथ जो है सो कमरा नंबर 1 से 6 को हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी और स्वरोजगारी सचिवालय से आपको जोड़ दिया जाता है। यही अमितेश्वरवाद। तो कमरा नंबर 1 से 6 को हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं। पहले राष्ट्रपति भवन हुआ शिवपुराण। जितने भी मंदिर हैं 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर को प्रमुख मानकर प्राण प्रतिष्ठा देके पुष्पांजलि श्रृंगार बहिष्कृत विधि पूजा करते हुए प्रथम राष्ट्रपति भवन पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी जारी, 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी जारी, 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी जारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शून्य बहिष्कृत भगवान मूर्ति, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी जारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट ईश्वर डैम हस्बैंड डैम है, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी जारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 राष्ट्रपति भवन को आरंभ करते हुए इसका ध्वज भी है और ध्वज है उजला कपड़ा, जिस पर हम 12 चिन्ह, क्योंकि 6 राष्ट्रपति भवन हिंदू के हैं और 6 राष्ट्रपति भवन जो माइनॉरिटीज़ के हैं। तो पहला राष्ट्रपति भवन हुआ हिंदू का त्रिशूल मांग में सिंदूर, जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर कहलाता है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर, जो कि विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, नमित अभिलाषा लाइव मनी कहलाता है। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर, जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, जो कि आदिशक्ति जगदम्बा को रिप्रेजेंट करता है। 5वां है प्रत्येक स्वर्ण बहिष्कृत भगवान मूर्ति, जो कि हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी को रिप्रेजेंट करता है। और छठा है हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी, यानी कि गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जो कि हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी को रिप्रेजेंट करता है। और 5वां है किताब मांग में सिंदूर, जो कि प्रत्येक स्वर्ण बहिष्कृत भगवान मूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन के चिन्ह हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ के हैं, जो जहाँ पर माइनॉरिटीज़ प्रार्थना करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। समय आ गया है कि हम लोग सब व्यवस्थित होकर रहे, और व्यवस्थित होने का सबसे पहला जो ज़रूरत है वह है रेगुलर इनकम। हमारे रेगुलर इनकम हो, और रेगुलर इनकम संवैधानिक तौर पर हो सकता है। तो आइए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लें अमितेश्वरवाद के तहत, और शारदापुर पहुंचकर अमितेश्वर झा का साथ दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करें, फिस्ट ऑफ द हैंड को वोट दें, और जनता स्वरोजगारी सचिवालय में अपना ऑफिस कायम करें। तो हम सब पार्लियामेंट
ऑफ इंडिया और विधानसभा में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट बिल 2001 साल बिल को पारित करें। धन्यवाद।